بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو گائز، آج ہم اپنے ناول کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آئی ہوپ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اسے بہت انجوائے کریں گے۔ ایکسکیوز می میم، ساری کلاس ختم ہو چکی تھی۔ اینا یونیورسٹی کے پوائنٹ کے انتظار میں کھڑی تھی جب اسے اپنی پشت سے آواز سنائی دی۔ اینا نے مڑ کر دیکھا، وہی لڑکا ہاتھوں میں فلاور بوکے لیے کھڑا تھا۔ ان پھولوں کو دینے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ آخر کیوں آپ یہ مجھے ہفتے بعد لا کر دے جاتے ہیں؟ اس لڑکے نے اینا کی طرف پھول بڑھائے تو اینا بغیر ہاتھ بڑھائے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فلاورز میں آپ کو نہیں دیتا بلکہ سر روحان بھجواتے ہیں۔ وہ لڑکا اینا کو دیکھتا ہوا بتانے لگا تو اینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب بھلا یہ روحان کون تھا؟ اسے کیا معلوم، اور آپ کے سر روحان یہ فلاورز مجھے کیوں بھجواتے ہیں؟ اینا کنفیوز ہوتی ہوئی اس لڑکے سے سوال پوچھنے لگی۔ جی اس کا تو مجھے علم نہیں، یہ تو وہی بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ فلاورز وہ آپ کو کیوں بھجواتے ہیں۔ میں تو ان کا ڈرائیور ہوں، ان کے کہنے پر آپ کو یہ بوکے دے جاتا ہوں۔ اس لڑکے نے بولتے ہوئے ایک دفعہ پھر اینا کی طرف وہ فلاورز کا بوکے بڑھایا۔ کیا وہ خود اس قابل نہیں ہیں جو یہ بوکے آپ کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں؟ ان سے کہہ دیجیے گا مجھے ان کے دیے گئے فلاورز نہیں چاہیے، اور آئندہ مجھے فلاورز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینا اب کی بار تھوڑا سخت لہجے میں کہتے ہوئے پوائنٹ کے اندر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کون تھا یہ روحان اور کیا چاہتا تھا۔ اگر بھائی کو ذرا سا بھی شک ہو جائے تو نہ جانے ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اچھا ہی ہوا جو آج وہ منہ پر منع کر آئی۔ اینا پوائنٹ میں بیٹھی ہوئی دل ہی دل میں اپنے آپ کو مخاطب کرتی ہوئی بولی، ضروری ہے کرام بھائی کی شادی میں جانا؟ کتنی ٹھنڈ ہے آج، اور صبح آپ کو زکام بھی ہو رہا تھا۔ چھوڑے نہ کینسل کریں وہاں جانے کا پروگرام۔ اینا دی جان کے کمرے میں آ کر انہیں بریزی کے آف وائٹ کلر کے چکن کے سوٹ میں تیار دیکھتی ہوئی بولی، ارے کیوں کینسل کروں پروگرام؟ کتنی محبت سے کرام کی ماں بلا کر گئی تھی۔ آخر کو پرانے محلے میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، اتنے سالوں کا ساتھ ہے جب سے جہانگیر نے یہاں پر بنگلہ لیا ہے، کوئی آس پڑوس ملتا ہی نہیں۔ اور یہ بھی خوب کہی تم نے، اگر سردی ہو یا طبیعت خراب ہو تو کون سا دنیا کے کام رک جاتے ہیں، اصولاً تو تمہیں بھی چلنا چاہیے میرے اور جہانگیر کے ساتھ۔ دی جان اینا کو دیکھتی ہوئی بولی، 3 دن پہلے ہی ان کے پرانے محلے سے شادی کا انویٹیشن آیا تھا جس میں دی جان جانے کے لیے کافی پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ جہانگیر ان دنوں کافی مصروف تھا، مگر دی جان کی خوشی اور تیاری دیکھ کر اس نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا تھا۔ دی جان میں کیسے جا سکتی ہوں، بھلا سیمسٹر سٹارٹ ہونے والے ہیں، میرے پیپرز کی تیاری کرنی ہے۔ اینا دی جان کے لیے کشمیری شال نکال کر انہیں تھماتی ہوئی اپنی مجبوری بتانے لگی، بچے یہ تو تمہارا بچپن کا رونا ہے، تم پڑھائی کی جان چھوڑو تو پیپرز تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ کہیں آؤ جاؤ گی تو ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ دی جان کی اتنی خوبصورت سی پوتی بھی ہے۔ دی جان کی بات سن کر اینا کو ہنسی آئی، کیونکہ اب دی جان کا فیوریٹ ٹاپک سٹارٹ ہونے والا تھا۔ یہ غلط ہے دی جان، آپ نے بھائی کو تو خوب پڑھایا لکھا ہے، میری باری میں آپ کو فوراً میری شادی یاد آ جاتی ہے۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جانے والی جب تک بھائی میرے لیے ایک عدد پیاری سی بھابھی نہیں لے آتے۔ اینا دی جان کو دیکھتی ہوئی بولی، ویسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، یہ توپوں کا رخ میری طرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سنگل بندہ ہی اپنی لائف میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ جہانگیر جو کہ دی جان کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، اینا کی بات سن کر فوراً اس کو دیکھتا ہوا بولا، تم دونوں بہن بھائی تو بالکل ہی دیوانہ ہو گئے ہو جو ایسی بات کر رہے ہو، کان کھول کر سن لو، اسی سال تم دونوں کی شادی کرواؤں گی، بلکہ جہانگیر کے لیے تو آج کی تقریب میں کوئی لڑکی نظر آ جائے کل ہی رشتہ لے کر جاؤں گی۔ دی جان ان دونوں کی طرف دیکھ کر دھمکاتی ہوئی بولی اور اپنا پلان بتانے لگی، جس پر جہانگیر دی جان کو حیرت سے دیکھنے لگا، جبکہ اینا جہانگیر کی حیرت زدہ شکل دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تو اکرام کی شادی میں آپ کے جانے کی اصل وجہ یہ تھی دی جان، یعنی حد ہو گئی۔ جہانگیر افسوس سے نفی میں سر ہلاتا ہوا دی جان کو دیکھ کر بولا، ارے حد کس بات کی ہو گئی، کوئی انوکھا کام ہے، شادی سبھی کرتے ہیں، دیکھنا تمہارے لیے ایسی خوبصورت لڑکی ڈھونڈوں گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ دی جان اپنے بیٹے سے پوتے کو دیکھتی ہوئی بولی، جو آج کے تیز دور میں بھی
दूसरे लड़कों की तरह हर लड़की के पीछे भागने वाला नहीं था। आजकल खूबसूरत लड़कियों की डिमांड और दिमाग बहुत ऊंचे हैं दीजान, जहांगीर दीजान से बोला। साथ ही उसे वही बदतमीज़ और मगरूर लड़की याद आई जो उसे आईने में शक्ल देखने का मशवरा दे रही थी। ये नहीं था कि जहांगीर को किसी किस्म का एहसास कमतरी था, मगर उससे पहले कभी किसी लड़की ने उससे इस तरह बदतमीज़ी नहीं की थी। अगर दोबारा कभी इस लड़की से जहांगीर का सामना होता तो जहांगीर ने उसे मज़ा ज़रूर चिखा देना था। ये उसने सोच लिया था, क्योंकि उस अपने नापसंदीदा लोगों को ना वो भूलता था ना छोड़ता था। तो ऐना का भाई कौन सा कम है? लड़कियां सारे जहां में ढूंढती फिरेगी तो उन्हें मेरे भाई जितना हैंडसम कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ऐना जहांगीर के सामने आकर तफक्कुर से बोली, जिस पर जहांगीर मुस्कुराने लगा। बेफिक्र रहो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए बहुत हैंडसम सा लड़का ढूंढेगा। जहांगीर ऐना के सर पर हल्की सी चपत लगाता हुआ बोला तो ऐना झीम गई। ओह भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? वो अपनी झीम पिटाती हुई बोली। तो जहांगीर मुस्कुराने लगा। चलें दीजान, वापसी जल्दी करनी होगी। ऐना दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर लेना। जहांगीर इन दोनों को बोलता हुआ कमरे से निकल गया। वो बड़े दिमाग से नोट्स में सर दिए हुए पढ़ाई में मसरूफ थी। तब डोर बेल बजी। उसने घड़ी में टाइम देखा, 11:30 बज रहे थे। ऐना ने पास रखी हुई गर्म शाल उठाकर खुद को लिपेटा और दीजान की आमद के ख्याल से दरवाज़ा खोलने चलेगी। जब लाउंज में पहुंची तो अचानक लाइट चली गई। सामने ही डाइनिंग टेबल से कैंडल उठाकर उसे जलाती हुई दरवाजे तक पहुंची ताकि दीजान के लिए दरवाज़ा खोलने के बाद जनरेटर ऑन कर सके। जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोला तो हवा का सर झोंका उसके जिस्म से टकराया। जैसे बेसाख्ता ऐना ने झरझरीली हवा के ज़ोर से मोमबत्ती बुझ चुकी थी, जिसकी वजह से ऐना आने वाले को नहीं देख सकी। कौन? वो अंधेरे में अपने सामने खड़े शख्स को पहचान नहीं पाई थी, इसलिए आने वाले से पूछने लगी। रोहान। आने वाले ने अपना नाम बताने के साथ ही लाइटर जलाया। आग का शोला निकलने के साथ ही सामने खड़े शख्स का चेहरा उसे नजर आया। नाम सुनकर वो बुरी तरह चौंकी थी और अब रोहान को अपने सामने देखकर वो बेयकीनी से 2 कदम पीछे हटी। रोहान घर के अंदर दाखिल हुआ और बाहर का दरवाज़ा बंद किया। अब वो लाइटर की मदद से ऐना के हाथ में मौजूद कैंडल जला रहा था। ऐना हाथ में कैंडल लिए सांस रोके अपने सामने खड़े शख्स को कैंडल की रोशनी में देखने लगी, जो कि खुद भी ऐना का चेहरा बहुत फुर्सत से देखने में मसरूफ था। ये वही रोहान था जो उसे फूल भेजता था। जहांगीर दीजान को लेकर बैंक्वेट में पहुंचा। आधा घंटा गुजरने के बाद वहां रोनमा हुए वाक़ये से लोगों में अजीब हलचल मच गई। सब खैरियत है? क्या हुआ है बाहिर? जहांगीर लोगों की बातें सुनकर बाहर जाने का इरादा कर रहा था। रास्ते में इकराम का छोटा भाई नजर आया, जो इस वक्त बाहर से आ रहा था। जहांगीर उससे पूछने लगा, जहांगीर भाई, 10 मिनट पहले बड़ी सी गाड़ी यहाँ सड़क से गुजरी थी। गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स कोई बड़ा सा सूटकेस फेंक कर गया है, या मालूम नहीं, शायद उससे गलती से गिर गया हो। अब लोग उस सूटकेस को देखकर परेशान हैं, न जाने उसमें क्या है। अकराम का भाई जहांगीर को देखकर तफसील बताने लगा। जहांगीर वहां पहुंचा तो लोगों का रश लगा हुआ था और सड़क के बीचों बीच एक ब्लैक कलर का बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ था। लोग सूटकेस के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि अंदर कहीं कोई फटने वाला मवाद ना हो। सब पीछे हटो, खाली करो जगह को। जहांगीर जोरदार आवाज़ में बोलता हुआ अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर शकील को कॉल मिलाने लगा। वो बैग के करीब जाकर उसका चारों तरफ से जायज़ा लेने लगा। उसने बैग की जिप के पास गीली सतह को उंगली से छुआ और नाक के पास ले जाकर स्मेल करने लगा। अंदर कोई जहरीला फटने वाला मवाद नहीं था, ये खून की स्मेल थी। बहुत मुमकिन था कि अंदर कोई दिल दहलाने वाली चीज़ मौजूद हो, मगर इस महकमे में आकर दिल खुद ब खुद सख्त और मजबूत हो जाया करते हैं। सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? खाली करो रोड। जहांगीर फिर बुलंद आवाज़ में चीखा था, क्योंकि उसके बैग के करीब आने से लोग भी हिम्मत करते हुए करीब आ रहे थे। साथ ही पुलिस की वैन भी वहां पहुंच चुकी थी, जिसमें से पुलिस निकलकर लोगों को पीछे हटाने लगी। इंस्पेक्टर शकील जहांगीर के पास पहुंचा और खुद भी बैग का मुआयना करता हुआ रबड़ के ग्लव्स पॉकेट से निकालने लगा। ग्लव्स मुझे दो। जहांगीर के बोलने पर इंस्पेक्टर शकील ने ग्लव्स उसकी तरफ बढ़ाए और ग्लव्स हाथ में पहनकर सूटकेस के पास बैठा और जिप खोलने लगा। जिप खोलने के बाद जैसे ही सूटकेस खोला तो अंदर से आती बदबू की वजह से उन दोनों को अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा, मगर अंदर मौजूद लड़की की लाश देखकर उन दोनों की नज़रें भी झुक गईं। इससे पहले मीडिया की टीम आई और रश बढ़े। बॉडी को अच्छी तरह कवर करो, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। जहांगीर की हिदायत पर शकील यस सर कहता हुआ उठा। जहांगीर ने एक नज़र दोबारा इस लड़की की लाश पर डाली, जिसे मालूम नहीं बुरी तरह ज्यादती का निशाना बनाकर मारा गया था या फिर किसी दुश्मनी के तौर पर उसे मारने से पहले अजियत दी गई थी। उसके जगह जगह से फटे हुए कपड़े और जिस्म पर मौजूद रस्सी और तारों से बांधने की
निशान मौजूद थे। उसके जिस्म को जगह जगह से जलाया और काटा गया था। उसके जिस्म पर मौजूद निशान लड़की के साथ होने वाले जुल्मों सितम की दर्दनाक कहानी अपने मुंह से बयान कर रहे थे। मगर जिस चीज़ पर जहांगीर दोबारा इस लड़की की लाश को देखने पर मजबूर हुआ था की सूरत उसकी कमर पर चिपसा था कि और वो इस लड़की की ही कमर पर मौजूद टैटू था। 1 माह पहले होने वाली यूनिवर्सिटी के फंक्शन में बतौर गेस्ट मंसूर मलक को बुलाया गया था, मगर मसरूफियत के बाइस मंसूर मलक की बजाय यूनिवर्सिटी में रोहान मंसूर ने शिरकत की थी। इसी फंक्शन में ऐना ने स्टेज पर स्पीच भी की थी। ऐना को याद आया, ये वही मंसूर है, रोहान मंसूर है, तो क्या ये उसे बुके भेजता था? ऐना का दिमाग उसकी तरफ क्यों नहीं गया? वो कैंडल हाथ में लिए रोहान को देखती हुई सोचने लगी, यहाँ क्यों आए हैं आप? ऐना उसको देखकर पूछने लगी। उसे अपने सामने देखकर ऐना को अजीब घबराहट हो रही थी। कल आपने फ्लावर्स लेने से इनकार कर दिया, तो सोचा आज खुद आपके सामने आकर आपसे वजह पूछ लूं, और अच्छा है आप मुझे देख लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि मैं फ्लावर्स देने के काबिल हूं भी कि नहीं। रोहान कैंडल की रोशनी में उसका चेहरा देखता हुआ बोला, जिस चेहरे को एक दफ़ा देखने के बाद हर रोज़ वो उससे ख्यालों में सोचता रहता, आज वो उस चेहरे को पहली बार बेहद करीब से देख रहा था। आप फ्लावर्स क्यों भेजते हैं मुझे? ऐना डरती हुई से पूछने लगी। वो जानती थी इस काबिल वाली बात वो तंजिया कह रहा है। उसके ड्राइवर ने उसे ऐना की बात बताई होगी, मगर सच तो ये था कि सामने खड़ा वो हैंडसम सा बंदा हर लिहाज से काबिल था। ऐना चोर नज़रों से उसे देखने लगी और फिर अपनी नज़रें झुका गई। अच्छी लगी थी आप मुझे, तो सोचा रूबरू ये बात बताने से पहले फूलों का सहारा लिया जाए। सुना है फूल भी हाले दिल बयान कर देते हैं, तो सोचा शायद आप भी मेरे दिल की बातों की बात फूलों के ज़रिए समझ जाए। रोहान दिलचस्पी से उसके चेहरे पर नज़र टिकाए बोल रहा था। ऐना उसे हैरत से देखने लगी कि कोई पहली मुलाकात में यूं लड़की से अपना हाल दिल बयान करता है। मेरे अलावा और कितनी लड़कियों को इस तरह बुके भेज कर हाल दिल बयान कर चुके हैं आप? ऐना को अपने ऊपर उसकी जमी हुई नज़र साफ महसूस हो रही थी। इतना अमीर और हैंडसम शख्स, यकीनन वो उससे फ्लर्ट कर रहा होगा। जब भी ऐना रोहान को देखती हुई संजीदगी से पूछने लगी, मगर ऐना की बात सुनकर रोहान ने जानदार कहका लगाया, इत्मीनान रखिए, आप खातून अव्वल हैं मिस ऐना, जिसे देखकर मेरे दिल में आपको फूल भेजने की ख्वाहिश जागी। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ काफ़ी बिजी है। इन खराफात में पढ़कर मैं वक्त ज़ाया करने वाला इंसान नहीं हूँ, बल्कि हर बात को सीधे और आसान लफ्ज़ों में बयान करना मेरी आदत है। आप मुझे अच्छी लगी तो मेरा दिल चाहा आपको अपने दिल की बात से आगाह करूँ। अगर मैं भी आपको अच्छा लगा तो आप मुझसे मोबाइल पर बात कर सकती हैं। मैं आपकी कॉल का वेट करूँगा। रोहान के बोलते ही अचानक लाइट आ गई और कमरा एकदम रोशन हुआ। रोहान ने फूंक मारकर कैंडल बुझाई और ऐना के हाथ से लेकर उसे साइड में रखी छोटी सी मेज़ पर रख दी। अब वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालकर ऐना की तरफ बढ़ाने लगा, और अगर मैंने आपको कॉल नहीं की तो? ऐना ने एक नज़र उसके बढ़े हुए हाथ पर डाली, फिर वो उसको देखती हुई पूछने लगी। ऐना की बात सुनकर रोहान के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट रेंगी। तो फिर मैं दोबारा आपसे मिलने आपके घर पर आऊँगा, मगर अगली बार ये इत्मीनान करवाने के बाद कि आपकी फैमिली भी घर पर मौजूद हो। रोहान उसका नाजुक हाथ थाम कर उसे कार्ड पकड़ाता हुआ मुस्कुरा कर बोला, जिस पर ऐना उसे घूरने लगी। मतलब आप डरा रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? ऐना को इस पर गुस्सा आया था, जिसकी परवाह करते हुए रोहान अपनी मुस्कुराहट छुपा गया। ना मैं आपको डरा रहा हूँ, ना ही ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप मुझे कॉल करेंगी। रोहान के लहजे में यकीन था, जिसे देखकर ऐना की को हैरत हुई। वो जाने के लिए मुड़ा और दरवाजे पर पहुंचकर पलट कर दोबारा ऐना को देखने लगा। ऐना, मैं वक्त गुजारी करने वाला इंसान नहीं हूँ। अपने जज्बों में खरा हूँ। मैं शिद्दत से आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। रोहान एक नज़र ऐना को देखता हुआ बोला और दरवाजे से बाहर निकल गया। ऐना घर का दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने हाथ में मौजूद कार्ड देख रही थी, जो उसे रोहान पकड़ा कर गया था। तुम्हें मालूम है ना, यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश नहीं है, मगर तुमने गलती नहीं बेवकूफ़ी की है। अब तुम अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
ब्लैक किंग सोफे पर विराजमान अपने कदमों में बैठे हामिद को देखता हुआ बोला, जो रूमा की लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था, मगर बेहतियाती की वजह से उससे बैग जिसमें रूमा की लाश मौजूद थी सड़क पर ही गिर गया। माफ़ कर दें सर, मैं आपका वफादार हूँ, ये मेरी पहली गलती है, आइंदा से आगे कुछ गलत नहीं होगा। हामिद ब्लैक किंग के कदमों में बैठा गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर गलती की सूरत में मुख्तलिफ स्ट्राइप्स लगाई जाती हैं, या तो इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं जंगली कुत्तों के बीच जिस पर खून मिलकर जंजीरों से बांध दिया जाता है, या फिर सिरिंज के ज़रिए आदमी को इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसका आधा धर्म मफलूज हो जाए। ऐसे ही रोमा ने गलती की थी, उसे गुड़िया की तरह सजा सवार कर ब्लैक किंग के हुक्म पर उसके खास मेहमानों के पास भेजा गया था, ताकि वो अपने हुस्न से ब्लैक किंग की मेहमानों का दिल खुश कर दे। मगर उसने फ्रूट बास्केट में मौजूद फ्रूट नाइफ से न सिर्फ ब्लैक किंग के मेहमानों को ज़ख्मी किया था, बल्कि वहाँ से भागने की भी कोशिश की थी। पकड़े जाने की सूरत में उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को सिगरेट से जलाया गया था और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बेरहमाना तरीके से उसको मारा गया था। तुम्हें मालूम है हामिद, तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से मैं कितनी मुश्किल में फंस सकता हूँ। अगर पुलिस या मीडिया ज़रा सा भी चौकन्ना हो गई तो कितनी मुश्किल पैदा होगी मेरे लिए। अब अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो कोई गलती करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगेगा, और ब्लैक किंग ने तो अपने बाप को भी माफ़ नहीं किया था। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई जिस पर ब्लैक किंग को रहम आ जाए। ब्लैक किंग ने बोलते हुए अपने जूते से हामिद के मुंह पर लात रसीद की। जुनैद, उसे यहाँ से ले जाओ, इलेक्ट्रिक शॉक से यकीनन उसके सोए हुए दिमाग बेदार करने के लिए काफ़ी है। ब्लैक किंग ने अपने ख़ास बंदे को कहा था, जो हामिद को खींचता हुआ वहाँ से ले गया। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो फ़हीम और नजमा का कत्ल करने के बाद इस माल गाड़ी में फ़रार हो गया था जिसमें मवेशियों को सिंध पहुँचाया जा रहा था। चाय के होटल पर काम करते हुए उसने फैसल जेरी से मुलाकात हुई, जिसका मुंशियात का कारोबार था। फैसल जेरी से उसे अपने साथ ले आया था। काशिफ की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ वो फैसल जेरी का राइट हैंड बन गया, और जब फैसल जेरी इस पर मुकम्मल एतमाद करने लग गया तब काशिफ उसके लिए वो सांप साबित हुआ जो दूध पिलाने के बावजूद डस लेता है। ऐसे ही काशिफ ने फैसल जेरी का पता हमेशा से साफ कर दिया, और चंद सालों पहले जो कि फैसल जेरी का ख़ास बंदा था वो ब्लैक किंग के नाम से जाना जाता था। जब मुंशियात के कारोबार में उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़े तो उसने लड़कियों का कारोबार भी शुरू कर दिया। 45 साल की उम्र में वो फैसल जेरी से ज़्यादा तजर्बाकार और मालदार हो गया था। दुनिया के सामने उसकी शनाख्त काशिफ जेरी थी, जो कि शक्ल का बेइंतहा बदसूरत होने के बावजूद नहायत शरीफ और इज़्ज़तदार बिजनेसमैन था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो एक होटल का मालिक था, मगर कोई ये नहीं जानता था वो काली शक्ल के साथ साथ काले दिल और किरदार का भी मालिक है, जिसके अमाल के साथ साथ काम धंधे भी काले थे। आई होप गाइस आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।